کراچی میں لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی، تاجروں نے ٹمبر اور آئرن مارکیٹس میں دکانیں کھول لیں، پولیس کا ایکشن، متعدد گرفتاریاں۔ صدر آل کراچی تاجر اتحاد حماد پونا والا بھی زیر حراست، دکاندار مشتعل، نعرے بازی، موبائلز کا گھیراؤ، کسی کو گرفتار نہیں کیا، تاجر خود گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے، پولیس کا موقف۔ جبرن دکانیں بند کرانا شروع کی ہے۔ میں نے کہا آپ لوگوں کو تشدد نہیں کر سکتے، آپ کو گرفتار کرنا ہے، آپ مجھے گرفتار کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے زبردستی آ کے لوگوں کی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی، زبردستی دکانداروں پہ تشدد کیا، لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے میں اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سندھ حکومت صرف لالی پاپ دے رہی ہے، ابھی تک ایس او پیز ہی گورنر کو نہیں بھجوائے گئے، رویے سے تنگ آ کر کاروبار کھولا، حماد پونا والا کا موقف۔ سندھ تاجر اتحاد کا یکم رمضان سے دکانیں کھولنے کا اعلان، جیل بھرو تحریک کی دھمکی۔ گورنر سندھ کا تاجروں کی گرفتاریوں پر نوٹس، آئی جی پولیس کو فوری رہائی کا حکم، ایس او پیز طے کرنے کی بھی ہدایت۔ صوبائی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی کو کاروبار کی اجازت نہیں، جو بھی خلاف ورزی کرے گا کارروائی ہوگی، کمشنر کراچی کی وارننگ۔ جمعرات کو 4 بجے ایک ہم بڑا ٹیلیتھون کر رہے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اور بہت لوگ جو متاثر ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن لگایا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو اتنے زیادہ لوگ متاثر ہیں اس وقت، ان کے لیے ہم پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ کل شام کو 4 بجے سے جو ٹیلیتھون شروع ہوگا، پلیز اس میں شرکت کریں۔ عطیات جمع کرنے کے لیے احساس ٹیلی تھون نشریات، وزیر اعظم کل دنیا نیوز پر۔ خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز سپہر 4 بجے سے ہوگا۔ رقم طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس اور کورونا سے متاثرہ افراد کی امداد پر خرچ ہوگی۔ متاثرین کے لیے بہت زیادہ پیسہ درکار، اندرون اور بیرون ملک پاکستانی بھرپور حصہ لیں۔ عمران خان کا ویڈیو پیغام۔ خان صاحب کا الحمدللہ ٹیسٹ نیگیٹو آ گیا اور خان صاحب کو مجھے خیال ہے کہ مجھے کوئی مشورے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کرونا ٹیسٹ کا سیمپل دستیاب کر لیا گیا، آبٹین کر لیا گیا، اور اب وہ لیبارٹری میں چیک ہوگا اور چند گھنٹے لگتے ہیں اس ٹیسٹ میں۔ وزیر اعظم کے کورونا ٹیسٹ کا رزلٹ آیا یا نہیں؟ معاملہ غیر واضح، عمران خان کا ٹیسٹ منفی، مفت مشوروں کی ضرورت نہیں، زلفی بخاری کا بیان۔ ابھی سیمپل لیے گئے ہیں، نمونے لیبارٹری بھجوا دیے، ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل سلطان کا موقف۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا دورہ، محدود وسائل کے باوجود کورونا کے حوالے سے کارکردگی کی تعریف۔ ڈی جی آپریشنز اینڈ پلاننگ میجر جنرل آصف محمود کی سپاہ سالار کو بریف۔ کورونا سے ایک ہی روز 17 افراد جاں بحق، اموات کی مجموعی تعداد 209 تک پہنچ گئی۔ ملک بھر میں 9,749 مریض، پنجاب میں سب سے زیادہ 4,328، سندھ میں 3,053، بلوچستان میں 495 اور بلوچستان میں 495 افراد متاثر۔ محدود رہیں، محفوظ رہیں، سندھ میں لاک ڈاؤن جاری، کراچی کی گنجان آبادیوں میں کورونا کیسز بڑھنے پر وزیر اعلیٰ کا اظہار تشویش، ٹیسٹ بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ مراد علی شاہ کی شہریوں سے گھروں میں رہنے اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ پنجاب میں بھی لاک ڈاؤن، شہریوں کو محدود رکھنے کے لیے پولیس کے ناکے، پاک فوج کے جوان بھی معاونت کے لیے موجود۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا راجن پور میں قرنطینہ سینٹر کا دورہ، مریضوں کے لیے طبی سہولیات پر بریفنگ۔ پابندیاں مذاق بن گئیں، غیر ضروری گھروں سے باہر آنے والوں کی بھرمار، کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں شاہراہوں پر رش، بازاروں میں چہل پہل، حفاظتی تدابیر نظر انداز کرنے سے کورونا پھیلنے کا خدشہ۔
20 नकाती एजेंडे पर अमल दरामद का आगाज। उलमा को हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। रमजानुल मुबारक में भी घर पर ही नमाज अदा करूंगा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान। आटा और चीनी स्कैंडल की तहकीकात नैब रावलपिंडी के हवाले। कीमतों में इजाफे, सब्सिडी और मुबैना स्मगलिंग की तहकीकात के लिए JIT और तमाम इदारों से मुताल्लिका रिकॉर्ड हासिल करने का फैसला। पंजाब में इंसदादे जखीरा अंदोजी ऑर्डिनेंस नाफिज। आटा चीनी समेत 41 अशिया जखीरा करने वालों को 3 साल कैद। जब्त अशिया की मालियत का 50% जुर्माना होगा। मुश्किल की घड़ी में नाजायज मुनाफाखोर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं, उस्मान बुज़दार। शहबाज शरीफ का नैब के सामने पेश होने से फिर इनकार। एहतसाब ब्यूरो का भेजे गए जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार। लीगी सदर की 4 मई को दोबारा तलबी। कोरोना खतरे के बायस पेशी मुमकिन नहीं। मरियम औरंगजेब का मौक़िफ़। लीगी क़यादत कौल व फेल के तजाद की जिंदा मिसाल। शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब आने को तैयार नहीं, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बज़िद हैं। अवाम सियासी मुखालिफिन के दोगलेपन से बेजार हो गए। फिरदौस आशिकावान का रद्द अमल। आमदन से जायद असासे बनाने का रेफरेंस। खुर्शीद शाह और उनके बेटे MPA फरूख शाह की दरखास्त जमानत मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। दीगर मुल्जिमान की जमानत मंजूर। सूबाई हुकूमतों की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात में सुस्त रवि पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। फौरी इक़दामात का हुक्म दे दिया। सिंध से तरमीम शुदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट, यूनियन काउंसिल्स और तहसीलों की तादाद का नोटिफिकेशन तलब। डैनियल पर्ल कत्ल केस। सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुल्जिमों को ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सजाएं बहाल करने की इस्तदा। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में। स्पेन में आज भी 435 हलाकतें, बेल्जियम में 264, मेक्सिको में 145 और रूस में 57 अफराद दम तोड़ गए। ईरान में 24 घंटों के दौरान 94 अमवात। अमेरिका में 60 रोज के लिए ग्रीन कार्ड मुअत्तल। ऑर्डर पर दस्तखत आज होंगे। कोरोना के बायस दुनिया की बेहतरीन मईशत को बंद करना पड़ा। लाखों शहरी बेरोजगार हो गए। अमरीकियों की नौकरियों को महफूज बनाना तरजीह है, डोनाल्ड ट्रंप। रोजगार बचाने के लिए अहम इक़दाम। स्टेट बैंक का कारोबारी इदारोों को मुलाजिमीन की बरतरफियों से रोकने के लिए मजीद सहूलतों का ऐलान। एक्टिव टैक्स दहिंदगान के लिए कर्ज पर शराए सूद 3% कर दी गई। रवा माह तनख्वाहों की अदायगी के लिए रीफाइनेंसिंग स्कीम भी मुतारिफ। फौरी कर्ज की मद में IMF से 1 अरब 39 करोड़ डॉलर मौसूल। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी। और आमिर और शर्जील की तरह क्रिकेट में वापसी की ख्वाहिश। सलीम मलिक का मामला छोटा नहीं, ICC का मौक़िफ़ देख रहे हैं तर्जुमान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मैं हूँ उमर दराज गुंद और मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा एक ब्रेक के बाद। वजीर आजम इमरान खान का टेलीथॉन से मुतालिक वीडियो पैगाम जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने अंदरूने और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से हिस्सा लेने की अपील की है। वजीर आजम ने कहा टेलीथॉन का मकसद कोरोना से मुतासिर अफराद के लिए इमदाद इकट्ठी करना है। जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से,
कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। गवर्नमेंट तो अपना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन बदकिस्मती से इतने ज़्यादा मुतासरीन हैं कि हमें इसके लिए बहुत पैसा चाहिए होगा। तो इसलिए आप सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कल शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। अपडेट करें आपको कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा। डीजी ऑपरेशंस एंड प्लानिंग मेजर जनरल आसिफ महमूद ने सिपाह सालार को ब्रीफिंग दी। कोरोना की रोकथाम से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने नेशनल कमांड सेंटर की कोरोना वबा के हवाले से कारकर्दगी को इस मौके पर सराहा। आर्मी चीफ को कौमी राबता कमेटी के फैसलों और अमल दरामद से मुताल्लिक भी ब्रीफिंग दी गई। महदूद वसाइल और कम वक्त के बावजूद कमांड सेंटर की कारकर्दगी बेहतरीन रही। आर्मी चीफ की जानिब से ऐसा कहा गया, सेहत की मुश्किलात और कोरोना फैलाव का मुसलसल जायजा लेने की जरूरत है। पाक फौज हर मुश्किल घड़ी आवाम की सहूलत के लिए काम करती रहेगी। आर्मी चीफ को कोरोना वबा के असरात पर काबू पाने के लिए सिविल इंतजामिया से ताउन पर भी आगाह किया गया, जबकि आर्मी चीफ को टेस्ट, ट्रेस, करंतना के लिए कौमी हिकमत अमली से मुताल्लिक भी बताया गया। आर्मी चीफ की कोरोना वबा से मुताल्लिक NCOC की काविशों की तारीफ। सिविल मिलिट्री मरबूत रवाबित के लिए NCOC का किरदार लायक तहसीन है। आर्मी चीफ ने इस मौके पर ऐसा भी कहा। आपको बताएं कि पाक फौज कौमी इदारों के साथ भरपूर ताउन जारी रखेगी। आर्मी चीफ ने ये वाज़ेह अहकामात की हिदायत भी जारी की हैं, जबकि रमजानुल मुबारक में कोरोना से निमटने के लिए ताउन जारी रखा जाए, ये भी वाज़ेह तौर पर आर्मी चीफ की तरफ से कहा गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कराची में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए टिम्बर मार्केट और आयरन मार्केट के 4 ताजरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सदर ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद हमाद पूनावाला को भी हिरासत में ले लिया है। ताजिर इस मौके पर डट गए और उनका यह कहना था कि दुकानें बंद नहीं करेंगे। पुलिस का यह कहना है कि दुकानदारों ने हुकूमती अहकामात के खिलाफ ताले खोलकर काम का आगाज कर दिया था, इस बिना पर हिरासत में लिए गए। ताजिर रहनुमाओं का यह कहना है कि सिंध हुकूमत के रवैये से तंग आकर कारोबार खोला है, जबकि गवर्नर ने कहा सिंध हुकूमत ने SOPs अभी तक जारी नहीं किए, गो कि 24 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया था। हमाद पूनावाला का यह कहना था कि सिंध हुकूमत 2 रोज से विफाक को SOPs भेजने का कह रही है, जबकि दूसरी जानिब ताजरों ने हुकूमती अहकामात के बगैर यकुम रमजान से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया है। सदर सिंध ताजिर इत्तेहाद जमील पराचा ये कहते हैं जितनी गिरफ्तारियां करनी हैं कर लें, दुकानें खोलने पर एक्शन हुआ तो जेल भरो तहरीक शुरू कर देंगे। जमील पराचा ने कहा कि वजीर इत्तलात नासिर शाह से राब्ता किया, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सिंध हुकूमत ने 15 अप्रैल के बाद कोई राब्ता नहीं किया। जबरन दुकानें बंद कराना शुरू की है। मैंने कहा आप लोगों को तशद्दुद नहीं कर सकते, आपको गिरफ्तार करना है, मुझे गिरफ्तार करें, लोगों के साथ ज्यादती नहीं कर सकते। इन्होंने जबरदस्ती आके लोगों की दुकानें बंद कराने की कोशिश की, जबरदस्ती दुकानदारों पर तशद्दुद किया, लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस तरीके से मैं अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर जो करना है वो हमारे लोगों के साथ करें, मुंतखब नुमाइंदों के साथ करें। फैसले पे बरकरार है दुकानें, मैं बिल्कुल इस इस तमाम तर सूरत हाल पर तफसीलात जान लेते हैं शहरियार जंजुआ से। शहरियार 24 घंटे का वक्त मुकर्रर किया गया था और कमेटी बनाई गई थी ताकि SOPs बन सकें। अब तक इस मामले में पेशरफ्त क्यों नहीं हो सकी कि आज ताजिर खुद से ही कारोबार खोलने पे आ गए? देखिए, सिंध हुकूमत का तो ये दावा है और कहना है कि SOPs ताजिरों के साथ मिलकर बनाई जा चुकी हैं और ताजिर रहनुमा खुद भी इस बात को तस्लीम करते हैं कि उन्होंने चंद दिन पहले हुकूमत के साथ मिलकर, सिंध हुकूमत के साथ मिलकर SOPs बनाई थी। आगे सिंध हुकूमत को ये करना था कि वो SOPs उनको विफाक को भेजनी थी और विफाक ने जो है उस पर एक फाइनल डिसीजन लेना था। उस पर अभी तक ताजिर रहनुमाओं का ये कहना है कि सिंध हुकूमत ने विफाक से राब्ता नहीं किया है, जबकि सिंध हुकूमत ये कहती है कि उन्होंने वो SOPs विफाक को भेज दिए हैं। कराची में तकरीबन 1 महीने से तमाम अहम तिजारती मराकज़ बंद हैं और यकीनन जो ताजिर हैं उनको शदीद माली परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा। और ताजिर रहनुमाओं ने जो अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनका कहना यह था कि जो लॉकडाउन अभी कराची में या पूरे मुल्क में नाफिज है वो भी कोई 100% नताइज नहीं दे रहा है लॉकडाउन के।
है। कराची के जो ओल्ड सिटी एरिया की मार्केट है, अजनाब की मार्केट है, मेडिसन मार्केट है, वहां पर जाएं तो कहीं से भी नहीं लग रहा होता कि कोई लॉकडाउन है और लोग बिल्कुल भी एहतियाती तदाबीर जो है उनको नहीं अपनाए हुए। इसी बात को बुनियाद बनाते हुए ताजरों का यह कहना है कि आप तमाम मार्केटों को खोलने की इजाजत दें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहां पर कोरोना वायरस से बचाव के लिए इकदाम लें। 1 महीने से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, मार्केट बंद है, जिनकी वजह से उनको बहुत शदीद माली मुश्किलात का सामना है और हुकूमत इन ताजरों की बराह रास्त कोई माली मामलत भी नहीं कर रही है। अब इन ताजरों ने यकम रमजान से धमकी दी है कि हम जो है वो बाजार खोल देंगे सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक के लिए, और अभी मजीद वो सिंध हुकूमत से किसी किस्म का कोई भी रास्ता नहीं करेंगे। जी शुक्रिया शहरियार जंजुआ। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुआशी पैकेज पर अमल दरामद से मुताल्लिक जायजा इजलास हुआ। हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले रिलीफ पैकेजेस पर अमल दरामद का इस मौके पर जायजा लिया गया। कोरोना के दौरान मुल्क की माशी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। फंड्स की मुतासरा अफराद तक रसाई में शफाफियत को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आज़म ने ऐसी हिदायत की। इस इजलास में वफाकी वज़ीर असद उमर, हम्माद अजहर, हफीज शेख और हाशिम जमा वक्त शरीक हुए। अपडेट करें आपको कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले हुए हैं। सहरी और इफ्तारी में होटल रेस्टोरेंट मुकम्मल तौर पर बंद रखे जाएंगे। पंजाब में अब तक 216 इलाकों को मुकम्मल लॉकडाउन किया गया, ऐसा ब्रीफिंग में बताया गया, जबकि पंजाब में लॉकडाउन नरमी से केसेस में इजाफा हो रहा है। ब्रीफिंग में वज़ीर आला पंजाब को ये खबर भी दी गई। नुमाइंदा खुसूसी हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। हसन, कहिएगा क्या खबरें आई हैं मीटिंग रूम से? देखिए, जो तफसीलात सामने आई हैं, जराये का ये कहना है कि शहरी और इफ्तारी में होटल और रेस्टोरेंट जो है मुकम्मल तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। और इजलास में ये भी बताया गया कि पंजाब में अब तक 216 इलाकों को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया और लॉकडाउन में नरमी से केसेस में इजाफा हुआ है। और ये भी कहा गया कि ये जो अभी जो 25 अप्रैल तक जो लॉकडाउन है उसके बाद जो है एक नया लॉकडाउन में नरमी होगी, लेकिन उसका नया प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है जो जारी किया जाएगा। और ईद की तैयारी के लिए रमजान के आखिरी अशरे में रियायत मिलने के इम्कानात हैं, जबकि रमजान मुबारक के दौरान शहरी के वक्त जो है दूध, दही और खाने पीने की छोटी दुकानें खुली रहेंगी और बाकी तमाम बड़े होटल, रेस्टोरेंट शहरी इफ्तारी के दौरान मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। शटर डाउन करके कारोबार करने की भी इजाजत किसी सूरत नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह किया कि खिलाफ वर्जी पर कोरोना ऑर्डिनेंस के तहत दुकान सील और चलान किया जाए और SOP की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। इंडस्ट्रीज के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह किया कि स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो है अगले इजलास में ब्रीफिंग दी जाए, जिसकी इब्तदाई मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म से मंजूरी लेने के बाद उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.